Good morning, 12th class students. Welcome to your political science online class. Today I am going to continue your previous chapter, that is parties and party system in India, and this is the third part of this chapter. As you can see, the three important leaders of India. First one is Pandit Jawaharlal Nehru, the second is the Lal Bahadur Shastri, the third one is the Mrs. Indira Gandhi. First, Pandit Jawaharlal Nehru, he was the first Prime Minister of India from 1947 to 1964. The second one is Lal Bahadur Shastri ji, that is the second Prime Minister of India from 1964 to 1966. The third one is Mrs. Indira Gandhi, that is she became the Prime Minister of India from 1966 to 1977, and then again she became Prime Minister in the year 1980 to 1984. So these are the three important leaders of the Congress party, and they were the first, second and the third Prime Minister of independent India. The topics which we are going to cover today are the challenges of the political succession. This we are talking about a particular party, that is the Congress party. And then from Nehru to Shastriji, from Shastriji to Indira Gandhi, the context of the election which took place in the year 1971, the non-congressism general election which held in the year 1967. Then there was midterm election in the year 1971 and the restoration of the Congress party. So these topics we are going to cover today. So now the first one is, in India, two wars took place at that time in the 60s, between 1960 to 1970. In this 60s, two wars took place. First one is in the year 1962. With 1962, we had a war with China, in which India did not get success as it should have got. The other is in the year 1965, we have war with Pakistan, and Pakistan, both the countries, they were equal at that time. No one won and no one defeated. So, but because of these two war in the year 1960s, there was a heavy burden on our Indian economy. So we were having a burden on the Indian economy. Then there were two death of the major leaders who were the Prime Minister at that time. The first death was of Pandit Jawaharlal Nehru. He died in the year 1964, and after his death, Shri Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister of India, and he also died in the year 1966 in Tashkent. Got it? So afterwards, the another candidate was Morarji Desai, but the Congress followers and the other leaders, they did not made Morarji Desai as the Prime Minister. They elected Mrs. Indira Gandhi as the Prime Minister of India. So this kind of situation arose in the year in 60s in India. Some of the challenges were there at that time when Mrs. Indira Gandhi became the Prime Minister of India. At that time, there was the economic crisis as the failure of
monsoon. There was a heavy drought in the year 1965 to 67, and also the production of the agriculture also declined. इतना ही नहीं, और भी चीज़ें थी, लाइक फूड शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि ड्रॉट चल रहा था कंट्री में। तो फूड शॉर्टेज होने, उसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा, दैट वाज इन बिहार। बिहार में बहुत ज़्यादा भुखमरी हो गई थी, और आज तक भी हम जो देखते हैं कि बिहार की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो भी काफ़ी डाउन हो गया था, और देर वॉज अ ड्रॉप इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो चारों तरफ से जो है इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो डाउन होती जा रही थी। तो जो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने सोचा कि दे कैन डीवैल्यूएट द इंडियन रुपी। ठीक है, लेकिन लोग जो हैं इसको कभी भी पसंद नहीं करते। जब हम जो पैसे की अगर कीमत गिराते हैं तो लोग उसको पसंद नहीं करते। तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि इसकी वजह से जो प्राइसेस थे वो बढ़ने लगे थे, और जो है देयर वाज फूड स्कैसिटी एंड ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, बंद और हड़ताल जो है, लोग जगह जगह पे बंद और हड़ताल जो है कर रहे थे। एंड गवर्नमेंट जो है इसको सोच रही थी कि देयर इज़ नॉट प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन ये ऐसी बात नहीं थी। ये किसके कारण हो रहा था? क्योंकि बिकॉज जो लोग हैं वो अपनी जो डिमांड्स हैं वो आगे रखना चाह रहे थे, एंड इसकी वजह से जो नेक्स्ट लाइट मूवमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। जगह जगह पे जो हमारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप, या आप कह सकते हो कि वायलेंट जो होते हैं, दे स्टार्टेड देयर मूवमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और इसकी वजह से जो कम्युनिस्ट हैं या जो सोशलिस्ट पार्टी वाले हैं, उन लोगों ने भी अपने जो प्रोटेस्ट हैं वो निकालने शुरू कर दी। नॉन कांग्रेसिज्म जो है, जिसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी है, देयर वाज डिवीजन अमंग द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप्ट द कांग्रेस इन पावर। नॉन कांग्रेसिज्म जो है, जैसे कि जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में एक तो मेजर पार्टी होती है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, और बाकी छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं। तो वो सारे जो हैं वो क्या थे? छोटे छोटे जो पार्टीज़ हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट थे। लेकिन उन लोगों को लगा कि अगर हम ऐसे ही अलग अलग रहेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डिफीट कांग्रेस पार्टी। तो दे स्टार्टेड कोलिजन विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ उन्होंने गठबंधन जिसे हम कहते हैं वो करना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो उसके बाद जो है देयर वाज पॉलिटिकल अर्थक्वेक। पॉलिटिकल अर्थक्वेक से मतलब है ने कि किस तरीके से राजनीति में जो है बहुत ज़्यादा फेरबदल हुए। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, बट विद द लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट्स सिंस 1952। इनको मेजॉरिटी तो मिल गई, लेकिन इनकी जो सीट्स थी और जो उनका वोट्स थे वो उनको 1952 के कंपैरिजन में बहुत ही कम मिले। ठीक है, और कुछ हमारे सिंडिकेट मेंबर्स जो थे, जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना नॉमिनेट किया था, उसको हम सिंडिकेट ग्रुप कहते हैं। उस सिंडिकेट ग्रुप्स के जो लोग हैं, दे वर ऑल्सो डिफीटेड इन द इलेक्शन। और ये लोग कौन हैं? जैसे हैं कामराज, ठीक है, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, के बी सहाय, एंड टू मोर मिनिस्टर्स लाइक मुरारजी देसाई एंड निजालिंगप्पा। ठीक है, ये जो है इनको हम सिंडिकेट
ग्रुप का मेंबर मानते हैं। सिंडिकेट ग्रुप्स कौन है? सिंडिकेट ग्रुप हैं जो कि रिच और इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो हैं कांग्रेस पार्टी के हैं ये लोग, एंड दे वांटेड कि दे बिकॉज इंदिरा गांधी वॉज वेरी यंग दैट टाइम, शी इज़ नॉट हैविंग दैट मच एक्सपीरियंस, तो उसके ऊपर टोटली कंट्रोल रखने के लिए इन सिंडिकेट ग्रुप ने उस समय इंदिरा को सपोर्ट किया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये लोग भी जो सिंडिकेट ग्रुप के जो मेंबर्स थे, दे वेर डिफीटेड। उनके डिफीट होने, वो ये तो डिफीट हुए, उनके साथ में काफ़ी सारे जो हमारे 7 स्टेट्स थे वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी जो है उनका सफाया हो गया। ये आपके एरियाज़ हैं, लाइक not only 7 but also 9 states like पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। इन जगहों से जो है जो कांग्रेस पार्टी है इट वाज टोटली डिफीटेड। ठीक है, मद्रास में जो है एक रीजनल पार्टी जो है इट केम इन पावर विच इज़ DMK। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि नॉन कांग्रेस पार्टी जो है वो इट केम इन द पावर। ठीक है, रीजनल पार्टी थी और ये पावर में आ गई थी। जो अदर स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स में लोगों ने जो पार्टीज़ थी उन लोगों ने कोलिजन गवर्नमेंट के रूप में जो है अपनी पार्टीज़ को इकट्ठा किया एंड दे फॉर्म्ड अ कोलिजन गवर्नमेंट, जो कि चाहे उनके आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट थे, देन ऑल्सो दे जॉइंट देयर हैंड्स विद अदर पार्टी एंड एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उसमें से एक आपकी है संयुक्त विधायक दल, SVD। ठीक है, तो इसने बनाया। बिहार में जो बनी सोशलिस्ट पार्टी वो थी SSP एंड PSP। SSP है आपकी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और PSP आपकी है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये दोनों ने प्लस उसके साथ CPI भी मिल गया, जनसंघ भी मिल गया, और इन सब ने मिलकर के कोलिशन गवर्नमेंट बनाई एंड दे वर एबल टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट इन बिहार। पंजाब में भी जो राइवल अकाली फैक्शंस हैं लाइक संत ग्रुप है, मास्टर ग्रुप है, CPI, CPIM, रिपब्लिकन पार्टी, जनसंघ, ये सारी जो आपकी अपोजिशन पार्टी थी ये सारे एक दूसरे के साथ कोलाइड होकर के इन्होंने आपस में हाथ मिलाया एंड दे वर एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन पंजाब ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से दे फॉर्म द गवर्नमेंट। Then there was mid-term election in the year 1971 and the restoration of the कांग्रेस पार्टी। अब जो है इंदिरा गांधी ने किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट करवाया एंड आफ्टर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969 इस कांग्रेस पार्टी के 2 पार्ट्स हो गए। इट वाज स्प्लिटेड इन 2। द फर्स्ट वन वाज कांग्रेस O। ठीक है, जिसमें कि इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय द सिंडिकेट, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड कांग्रेस। और दूसरी थी कांग्रेस R, जो कि थी रिक्वेजिशनिस्ट बाय इंदिरा गांधी, जो कि हम बोलते हैं उसको न्यू कांग्रेस। तो कांग्रेस O एंड कांग्रेस R, कांग्रेस O एंड कांग्रेस R, इसमें से इंदिरा गांधी की ये पार्टी थी। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस में स्प्लिट हुआ और इंदिरा गांधी जो है वो इस जो रिक्वेजिशनिस्ट पार्टी थी उसकी वो लीडर बन गई। तो दैट टाइम VV गिरी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। उनकी वजह से ये बने थे। तो इसने प्रेसिडेंट को बोल करके कि द लोकसभा शुड नॉट कंटिन्यू, उसको डिसॉल्व कर लिया जाए। तो उसको कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया गया, उसका डिसोल्यूशन कर दिया गया, उसको भंग करा दिया गया। और कांग्रेस पार्टी का डिसोल्यूशन होने के कारण, बिकॉज ये बीच में हुआ था, इसलिए देयर वाज अ मिड टर्म इलेक्शन इन द ईयर 1971। 1971 में दोबारा से लोकसभा इलेक्शन हुए एंड नाउ इन दिस टाइम
कांग्रेस वन मोस्ट सीट्स देन एवर, सारी जो मोस्टली सीट्स थी इट वाज स्वेप्ट बाय द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस सीपीआई कंबाइंड टैली जो है उस समय 375 सीट्स हो गई थी। इन दोनों के कंबाइन होने पे 375 सीट्स होगी। और उसके बाद देर वॉज इंडो पाक वॉर एडेड टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। इंडो पाक वॉर हुआ, जो बांग्लादेश का, आपको पता होगा कि बांग्लादेश का उस समय बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करने के लिए इंडिया ने उधर पे लड़ा पाकिस्तान के साथ, और जिसमें दे वर एबल टू गेट सक्सेस। तो उसके बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी और बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद देर वॉज असेंबली पोल इन द ईयर 1972। स्टेट असेंबलीज में पोल हुए इन द ईयर 1972, एंड दिस टाइम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे हैव द कांग्रेस पार्टी एज अ विनर। ठीक है, इट लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस इन मैनी स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स में कांग्रेस दोबारा से आ गई। तो इस तरीके से जो कांग्रेस है इट अगेन गॉट इट्स स्टेटस पार आफ्टर द 1972 इलेक्शन। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसका उतना स्टेटस नहीं रहा जितना इट वाज इन द ईयर इन द प्रीवियस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस समय इंडिया आज़ाद हुई थी उसके बाद उसका जितना रुतबा था, स्टेटस था, वो उतना नहीं रहा। ठीक है, और जो कांग्रेस है इट यूज़ टू डिवाइड। अब कांग्रेस जो डिवाइड होती थी, दे यूज़ टू फॉलो ओनली वन लीडर, दैट इज़ मिसेस इंदिरा गांधी, उसी को फॉलो करते थे। पहले जब कांग्रेस थी तो वो अपने जो एक्सपीरियंस्ड लीडर्स होते थे उनकी बात मानते थे। 1971 में जो मिसेस गांधी ने जो अपना स्लोगन जो लोगों के सामने बोला, दैट वाज द गरीबी हटाओ। ठीक है, कि भारत से जो है गरीबी, जो सबसे ज़्यादा गरीबी है उसको हमें हटाना चाहिए। ठीक है, और उनके और जो पॉलिसीज़ थे वो था कि वो इंडिया में जो बैंक है उनको नेशनलाइज करेंगे। ठीक है, एंड वन मोर वाज देयर, दैट इज़ द प्रीवी पर्स एबोलिशन। प्रीवी पर्स एबोल्यूशन होता है, प्रीवी जो होते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पर कि अभी तक भी जो प्रिंस जो थे दे यूज टू रूल तो नहीं करते हैं, बट दे वर गिवन पेंशंस बाय द गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड सच टाइप ऑफ स्टेटस, दे विल नॉट बी गिवन दिस काइंड ऑफ मनी और पेंशन बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री। तो ये उन्होंने हटाने का किया था, ये सब उनके। सो स्टूडेंट्स, you go through this chapter, that is challenges to and the restoration of the Congress system from your book, and you will be able to understand these topics. And the questions and the assignments I am going to give you in the next video. Thank you.